नानक बोले बुलाया तेरा अगम अगोचर सच साहिब मेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तुम है छाड़ कोई अवर ना ध्याओ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सतर हमारे मारिय है। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सतर हमारे मारिय है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सन्मानयोग चबर छतर तखत दे मालक, जुगो जुग अटल सर्व सांझी वालता दे पैगंबर, दीन दुनिया दे राखे, मनुखता दे सांझे रहबर, गुरता गद्दी ते सुभायमान हलत पलत के रखियक, पवित्र दिलों की जगदी जोत, निमाणिया दे मान, निताणिया दे ताण, निउटिया दी ओट, साहिबे कमाल, वालिए कुल आलम, सरवरे कायनात, धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी अपार किरपा बख्शिश रहमत दा सदका आप सरबत माई भाई गुरसिख संगत हर रोज की तरह गुरुद्वारा सिंह शहीदां सुहाना सिख कौम के महान शहीदां की पावन पवित्र धरती, उन्होंने महान शहीदां की चरण धूड़ परसन वास्ते पुजे हो। सतगुरां की पावन पवित्र निकी गोद का आनंद मान रहे हो, वडभागे हो। बड़े अदब सत्कार नाल आप जी ने बहुत ही सत्कारयोग हजूरी रागी जत्थे तो इलाही गुरबाणी तुरकी बाणी का कीर्तन सरवण किया। उपरंत सतगुरां ने कुछ समा सानू कथा का गुरमत विचारां का बख्शिया है। आओ इस मिले हुए समय दे विच गुरु प्यार दीयां बातां पाइए, सिक्खी दीयां बातां पाइए, ताकि साडे सारियां दे मनां विच सिक्खी दीयां जड़ां होर भी मजबूत होण, सिक्खी प्रति प्यार अदब सत्कार होर भी गूढ़ा होवे। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे उपर साडा होर भी अटल जिहड़ा विश्वास दृढ़ निश्चा बने, मन की वो अवस्था बने जिहड़ी अडोलता वाली है, गल गल ते डोले ना। इस मन विच रब्बी प्यार पैदा होवे, उस वाहिगुरू नूं मिलण दी तांघ पैदा होवे। सो कथा राही जदों
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂਪਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਗਮਈ ਦਾਸਤਾਨ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਇਹ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਇਹ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਇਹ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਤੂੰ ਆਓ ਘਰ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਮੰਨ ਬੈਠਿਆ ਫਿਰ ਮੁੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਦੇਸ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁੜਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੁੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੁੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਤੁਮ ਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਤਿਆਉ, ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਚਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਜਾਗ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਧ 10 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ, 20 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ, 50 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ, ਪਰ 50 ਕਿਲੋ ਜਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਈਦਾ। 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਾਗ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਲੱਗਿਆ ਜਾਗ 20-50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਵਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ,
ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਵਤਾ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਥਾ 'ਚ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਉਹੀ, ਦਵਾਈ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏ। 100 ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਦਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਮੈਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਚਾਬੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਸ ਤਾਲਾ ਦੀਆ, ਜਿਹਦਾ ਆ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲਣਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੋ ਨਿਵਲ, ਮਨ ਕੋਠਾ ਤਨ ਛੱਤ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਨ ਕਾ ਤਾਗ ਨਾ ਉਗੜੈ, ਅਵਰ ਨਾ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ। ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਅਵਰ ਨਾ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ, ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਚਾਬੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਰਸ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਬੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚਾਬੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਗ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਨ ਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਸਭ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਏਕ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਣਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿਣਕੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਣਕੇ ਮਾਤਰ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵਸ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਅਨਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਕੁਦਰਤਨ ਬਾਤ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰਿਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਨਾਮ ਬਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਛਕ ਲਾਂਗਾ। ਕਿਨਕਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਸਭ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਅਨਾਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਦਾਣਾ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਦਾਣਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਅਨਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਅਨਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਨਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਅਨਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੀਮਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਰਕਮੰਦ ਆਪ ਭਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਮਾਂ, ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯਕ ਤਾਰ ਮੂਏ ਯਾਰਮਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਨ ਲਏ, ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਵੀ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਆ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੁੱਲ। ਸੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੋਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਆ, ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਖਾਣ ਦੇਣੇ ਸੀ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਦਾਣਾ ਛਕਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਰਤਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਤੇ ਬੇਅਥਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੱਕ ਇਸ ਅਕਲ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਨਾਲ ਤੋਲਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਾਦਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਣੀ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉੱਡਦਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ, ਇਵੇਂ ਆਨੰਦ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਣੋ। ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮਹੀਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮਨਾ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਅਨਾਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਨੇ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਅਨਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆ। ਤਾਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਖੜਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਸੋਂ ਸਾਖੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੀ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਈ ਮੈਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵਾਂ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਨਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲ ਖੜਕ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲ ਤਾਰ ਖੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦ ਇੱਕ ਦਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਣੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਨਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਣੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਨਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਅਨਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾਣੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਤੁਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾ। तो सतगुरु कह रहे तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं। तुम्हें छाड़ का मतलब ये नहीं कि किसी होर धर्म नूं सतगुरु पातशाह ने नीवा दिखाया होवे, जां किसी होर धर्म का जिक्र किया होवे कि फलाना ओहदा ध्यान धरदा किसी काम नहीं, कोई ओहनूं ध्याउंदा कोई किसी काम का नहीं। जे इदां दी मन दे विच मनशा हुंदी, ओहदा जिक्र भी आउणा सी ते किते ना किते नफरत की गल भी सामने आना। इवें दा कुछ भी नहीं है। पीर भीखण शाह, जिवें अगे बचन होना, सेवक सिखा मारे तारी है, सेवकां विच आउंदे आ पीर भीखण शाह। मुसलमान धर्म नाल संबंधित ने, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ नहीं कहते होणगे, ਉਹ राम जी का नाम भी नहीं जपते होणगे, कोई होर शब्द भी नहीं, सिर्फ जो इस्लाम का उन्हां दा शब्द है ਉਹਦੀ आराधना करते होणगे। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तो कोई नफरत नहीं ना की। उन्होंने सब तो पहला पता लगता है कि इस दुनिया ते अल्लाह ताला खुदावंद करीम परमात्मा आप आया है, दर्शन करन पहुंचदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह बाल उम्र दे विच उहनूं दर्शन बख्शदे आ, उहदे सवालां दे जवाब दिंदे आ, उहदे शंके निवृत्त करदे आ। पर इदां दी कोई उत्थे नफरत जां कोई इवें दी गल नहीं आई भी ये किसी होर मंत्र नूं जपदा जां किसी होर नूं ध्याउंदा, इहनूं नहीं मिलना चाहिए, ये सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए। बल्कि सतगुरु तो कहते हैं, भाई जेड़े धर्म च रब ने तेनों पैदा किया, जेड़ा नाम तेनों तेरे पैगंबरां ने दिता, बस ओनू जप, पर जप ध्यान नाल। ध्यान का अर्थ की हुंदा? ध्याउणा, ध्यान ला के जपना। जिन्हों मारे कहता जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत काल, ध्याया मतलब ध्यान लाया। गुर सतगुर कहा जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम ध्यावै। ध्यान जेड़ा लाउंदा है, गल तां ध्यान दी है। जेड़े मर्जी धर्म विच तू पैदा होया, जेड़ा मर्जी तू मंत्र रब दे नाम दा जप रिहा, जप मन नाल ते जप ध्यान नाल। ते जे किसी देवी देवते प्रति मन च इदां दी गल हुंदी, फिर पंडित शिवदास जी कोल क्यों जांदे? पंडित शिवदास जी नूं जो वो मंत्र जप रहे आ, महाराज ने नहीं रोकिया भी ये शब्द क्यों जप रहे, भाई तेनों ये नहीं, तेनों आ जपना चाहिए।
ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰੋਜ਼। ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਆਈ, ਚਲੋ ਜੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, 2-3 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਗन्नाथपुरी भी गए, कुरुक्षेत्र भी गए, हरिद्वार भी गए, मक्के भी गए, जिथे जिथे भी गए, बस उन्होंने कहा भाई तेरा धर्म आए कहता तू उहदे च पक्का हो। सतगुरु ने तो माली की तरह जिवें थले घाह नहीं अपने आप ही उग पैंदा, वो जड़ां दे विचों घाह साफ किया भी तेरा धर्म भी वधे फुले, जेड़े धर्म च पैदा होया उहदा नाम, अपने धर्म को ना भुल, ब्राह्मण का की धर्म है उहनूं समझ, खत्तरी का की धर्म है उहनूं समझ। ते एक काजी की की ड्यूटी आ, ਉਹਦੇ ਤੇ अपनी पूरी जिम्मेवारी नाल उस अहुदे नूं निभा। तेनू मौलवी कहंदे आ, लोग तेरे ते विश्वास करदे आ, तेरा फर्ज की बनदा, तेरी कुरान शरीफ की कहंदी है, तेनू हजरत मुहम्मद साहब दा की उपदेश है। 360 सवाल कीते सी काजी रुकनदीन ने मक्के दी धरती ते, बहुतात सवालों के जवाब गुरु नानक साहब ने उन्होंने कुरान शरीफ विचों ही दिते कि भाई तेरा ही कुरान शरीफ ये कह रहा, तू क्यों नहीं मानता? मुहम्मद साहब कह रहा, तू क्यों नहीं मानता? ब्रह्मदास नाल विचार चली, उन्हें वेद शास्त्र पुराण सारे गड्ढे लदे होया ग्रंथां दे, ओदे ही ग्रंथां विच ओदे सवालां दे जवाब दिते भी तेरे वेद शास्त्र तेरे पुराण सिमरतियां ये कह रही, तू क्यों नहीं करदा? किसे धर्म तो नफरत नहीं है, किसी नूं वड्डा नहीं कीता, किसी नूं छोटा नहीं कीता। बस गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक विलक्षण बात यह कीती है, भाई देखो सानू भी उस परमात्मा ने भेजा, गुरु नानक साहब नूं भी परमात्मा ने भेजा, देवी देवतियां नूं परमात्मा ने भेजा, भगवान रामचंद्र नूं रब ने भेजा, भगवान कृष्ण जी नूं रब ने भेजा, हजरत मुहम्मद साहब नूं रब ने भेजा। जिन्ने भी ये रब्बी पैगंबरी रूहां आईयां सब नूं रब ने भेजा। बस रब जेड़ा सब नूं भेज रहा अपने कोल बुला रहा, ओदे चरनां दा ध्यान करना। ये हुण कोई औखा नहीं है, क्योंकि परमात्मा सर्व जगह व्यापक है। पूजा अकाल की जिन्हों क्या, बस परमात्मा का ध्यान धर, वाहिगुरू का ध्यान धर, किते ना होवे तेरे ध्यान में बहुता कुछ आ जाए तो ध्यान किते लगे ही ना। अज ध्यान ना लगन का बहुता वड्डा कारण यही है कि ध्यान में चल बड़ा कुछ रहा है। उन्होंने कदे लगता भी मैं आ शब्द जपा, कदे लगता भी आ मंत्र ज्यादा वधिया, कदे उन्होंने लगता भी ये ज्यादा फल मिलता। इदा ध्यान दे विच जदों इदां दीयां गल्लां आउंदियां, फिर वो जेड़े शब्द की कोई पता लग जाता ना भी पढ़िया भी इहदा आ फल मिलता है, वो फल वाल ध्यान हो जाता है, शब्द वाल ध्यान नहीं रहिंदा। जिन्होंने सतगुरु कहते सेवा थोड़ी मंगन बहुता, जपना थोड़ा सेवा थोड़ी, पिछे डिमांड बहुत वड्डी है। खैर तो मैं छाड़ कोई अवर ना त्याऊं। गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह कहते देखो मैनू परमात्मा ने भेजा, मैं तो भाई उन्होंने छड्ड के किते होर ध्यान नहीं करता, मेरे ध्यान में तो परमात्मा ही रहिंदा है ते मैं अपने सेवक सिखां नूं। अच्छा दूसरी गल यह है, गुरु गोबिंद सिंह साहब बादशाह तो आप परमात्मा का सरगुण स्वरूप ने, वाहिगुरू का रूप ने। हुण जे रब नूं कहिए भी तू ध्यान धर, ते रब किहदा ध्यान धरेगा? रब तो वड्डा है ही कोई नहीं, रब तो सर्वशक्तिमान कोई है ही नहीं, वो तो वड्डा कोई होवे ते बराबर का कोई होवे तां रब ध्यान धरे। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज रब का स्वरूप ने, पर वो कह रहा मैं रब का ध्यान धर रहा, रब रब का ही ध्यान धर रहा। जेड़े रब स्वरूप ने वो रब का ध्यान धर रहा नहीं, वो साडे लई एक पूर्णा पा के गया। मेरे गुरसिखो मैं तुहानू कह के चलिया, बस जदों ध्यान धरना परमात्मा के चरनां का ध्यान धरना, तुहाडे ध्यान विच परमात्मा होवे, तुहाडा परमात्मा ते अटल विश्वास होवे, क्योंकि परम शक्ति है, ਉਹਦੇ तो वड्डा कोई शक्तिवान नहीं है। ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जन्म दे रहा, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ प्रतिपालना कर रहा, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ इस संसार तो लैके भी जाता है। और उस परमात्मा नाल गुरु राही जुड़िया जाना है। तो इसलिए महाराज कह रहा कि परमात्मा जिहड़ा है
उस परमात्मा दे चरणों का ध्यान गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते मैं भी धरिया, ते तुसी भी उस परमात्मा के चरणों का ध्यान करो। जिवें धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने कहा, मैं सब कुछ छोड़ प्रभ तुहीं ते आया। गुरु अर्जन साहब भी कह रहे कि मैं किसी होर का ध्यान नहीं धरता, जो कोई औख सौख आई मैं परमात्मा के चरणों का ध्यान धरिया। उस वाहिगुरु अगे अरदास की, जिथे अज हर की पौड़ी है हरमंदिर साहब, यदि जदों सिख पट रहे सी ना, इत्थों बड़ी कैड़ी जमीन है, बड़ी सख्त धरती, सिख पट्टण दे पट्टी ना जावे। तो सिखा ने गुरु अर्जन साहब महाराज नूं कहा, महाराज भी कोई कृपा करो, भी ये पट्टी नहीं जा रही, इत्थे कृपा वरताओ। सतगुरु ने कहा मेरा सरंदा लेके आओ। सरंदा लिया के उत्थे भी कीर्तन किया, परमात्मा की सिफत की, वाहिगुरु की सिफत की, उस हरि अकाल पुरख वाहिगुरु की सिफत की। सरंदे नाल कीर्तन होया, उस परमात्मा अगे अरदास की। अरदास तो बाद कहूं हुण पट्टो, ते जदों वो पट्टी गई सारे ने कहा गुरु अर्जन साहब तुहाडी कृपा हो गई, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडी बख्शिश नाले। महाराज कहंदे मेरी कृपा नहीं, उस परमात्मा की हुई है, हरि भगवान की कृपा हुई है, इसलिए हर की पौड़ी कहा जाता है। उत्थे परमात्मा हर एक गल परमात्मा अगे अरदास करके कर रहे हो, हर एक जिहड़ा दुख सुख है परमात्मा नाल साझा कर रहे हैं। ते दूसरा महाराज ने कहा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना चाहो, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। वर दे अर्थ आपां पता है कि कह नानक मैं वर कर पाया, रिश्ते नूं भी वर कहा जाता है, क्योंकि उत्थे भी पति मालक खसम की गल आई। ते जिन्हें वर असी सारे जीव रूप इस्त्रियां, परमात्मा साडा जिहड़ा ओ मालक ओ खसम ओ पति है। इस जग में पुरख एक है, होर सगली नार सवाई। आ सारी जीव रूप इस्त्रियां ने, साडे सारियां दा मालक जिहड़ा ओ पति परमात्मा है। ते महाराज कह रहा जो वर चाहूं, जिहड़ा कुछ मैनू बख्शिशां चाहिदियां, दातां चाहिदियां, जो भी चाहिदा ओ परमात्मा मैं तुहाडे तो मंगदा, मैं किसी होर को नहीं मंगना। थां थां ते मैं झोलियां नहीं अड्डणियां, जेड़ियां भी चीज़ां चाहिदियां मैं तुहाडे तो, क्योंकि दुनिया ते दाते बहुत बने आ। कोई इत्थे राजे करण वर्गे होया, सोना चांदी हीरे भी दान करते रहे हो। किसी ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਲਾਏ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਫਲ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਲਾਏ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਭਰ ਥਾਲ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਦਾਨੀ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਾਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਆਹੀ ਦਾਤ ਰੱਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। दुनिया के दाते तो असी जिहड़े डिपार्टमेंट भी ये काफ़ी वंड दिते ना, भी जो कोई फलानी दात लैनी है तो फलाने को अरदास करो, जे आ चाहिए तो वो अरदास करो। इवें दी चलो मन में बड़ियां जिहड़े ख्याल जन्म लै लैंदे ने, क्योंकि एक चल रहा सिस्टम उस वहण दे विच बहना सुभाविक है। पर सतगुरु कहते तुहानूं जो कुछ भी चाहिए, जो भी चाहिए, सारियां दातां दा मालक परमात्मा है। उस परमात्मा तो मंगो, ते ओ कर्मां वाले ने, भागां वाले ने जिहड़े उस परमात्मा तो नाम दी दात मंग लेंदे। सब तो श्रेष्ठ दान है नाम दान। नाम दी दात जिहड़े मंगदे, मंगना मंग निका हर जस गुर ते मंगना। जिहड़े उस वाहिगुरु परमात्मा तो जिहड़े नाम दी दात मंगदे, ओहदी सिफत सलाह दी दात मंगदे, रब उन्हां नूं दातां बख्शदा है। और दूसरी बेनती जदों मंगना है उदों मंगते बन के मंगना। हम भीखक भिखारी तेरे तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम देव मंगत जन को सदा रहो रंग राता। परमात्मा असी तेरे दर दे भिखारी हाँ ते नाम दी दात मंग रहे हैं, ते साडी झोली विच नाम दी दात पा दिओ, क्योंकि जो वर चाहो सो तुम ते पाओ। जेड़ा कुछ चाहिए उस परमात्मा तो मंगो। वाहिगुरु कोल जेड़ा है वो नाम दा दान भी मंगिया, मांगो दान ठाकुर नाम। धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहते मैं उस ठाकुर को दान कदा मंगया, नाम दा। उस वाहिगुरु ने दिता, अमर कछु मेरे संग ना चले, मिले कृपा गुण गाम। क्योंकि मैनू पता लग गया होर जेड़े कर्म कांड, होर जेड़ा मैं नाम तो बिना जो कुछ कर रहा मेरे नाल चलण वाला नहीं, नाल जाण वाला नहीं। केवल एक नाम है, जह मात पिता सुत मीत ना भाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। उथे नाम है जिथे वैदो ना भाई, भैणों ना भाई, एको सहाई राम गए। सतगुरु कहते उत्थे नाम, सतगुरु कहते आ अच्छा नाम जपण लई जिन्हां ने वाहिगुरु तो कोई दात लेनी आ,
ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਦਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਉਦਮ। ਜੇ ਮਨ ਆਲਸੀ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਉਦਮੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆ ਜੀਉ ਕਮਾਵਦਿਆ ਸੁਖ ਪੁੰਚ। ਉਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਮੀ ਹੈ। ਉਦਮੀ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ, ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਦਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਹਾਵੇ। ਉਦਮੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਉਦਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਨੀ, ਰੁੱਧਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਿਰ ਕੰਬ ਪਿਓ, ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਸਿਰ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਰ ਕੰਬ ਪਿਓ, ਸਿਰ ਕੰਬ ਰਿਹਾ, ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ, ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਔਰ ਉਮਰ ਦਾ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ। ਨੈਣ ਜੋਤ ਦੇ ਹੀਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਗਈ। तो महाराज सब ने शरीरक शक्ति चाहिए है। शरीरक शक्ति होएगी तां परमात्मा का नाम जपया जाएगा। घंटिया बद्धी सिमरन च बैठ सकते हैं, घंटिया बद्धी असी बाणी पढ़ सकते हैं, घंटिया बद्धी सत्संग में आके बैठ सकते हैं, जे शरीर च ताकत होएगी। ते तीसरी दात सानू अकल की सियाणप चाहिदी है। महाराज ने कहा अकली कीचा दान, अकली साहिब सेवी है। जे रब नूं जपना तो वह भी अकल, तेरे को इन्ना क ज्ञान ध्यान होवे कि सचमुच ही जेड़ा मैं शब्द जप रहा परमात्मा का है, ये मैनू परमात्मा के घर तक ले जाएगा। ये कोई किसी ऐरे गैरे ने मैनू कोई इहो जिहा मंत्र शब्द नहीं ना दे दिता जिन्हों मैं जपदा भी रवां, समा भी ये ते लावां ते विचों निकले कुछ ना पानी च बधानी पै जाए। शब्द वो चाहिए, क्योंकि इत्थे फिर अकल, अकली साहिब सेवी है। ये पता होवे नाम भी जपना, सेवा भी करनी है, ते पूरे गुरु को जाना है, पूरे गुरु का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। इन्नी अकल काम करती होवे भी पूरे गुरु को जाना, पूरे गुरु का उपदेश सुनना है, पूरे गुरु तो पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जापा नाओ नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ, पूरे कोले जाके पूरा शब्द लैके पूरे दे गुण गाने। मैं किसी अधूरे कोल नहीं जाना। ये तां ही होएगा जे कोई अकल होएगी, कोई सियाणप होएगी, कोई दिमाग साडा सेंटर च होएगा, काम करदा होएगा। नहीं अज बहुत वड्डियां गिणतियां ने जिहड़े अंध विश्वास दे विच पै के थां थां ते ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਆ ਤੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ ਕਬੀਰ, माए मुंडो ते गुरु की जाते भरम ना जाए, आप डुबे चौबेद में चेले दिए बहाए। उन्हां कच्चियां कोलों ले हुए कच्चे मंत्र किसे साडे बेड़े नूं बन्ने नहीं ला सकते। तो ये तीन चीज़ां सतगुरु कहते हैं, उद्यम शक्त सियाणप तुमरी देह ता नाम वखाणी। ये उद्यम होवे, ये शक्ति होवे, सियाणप, ये तीन चीज़ां सिख कोले चाहिदियां जे उन्हें सिमरन करना है। और परमात्मा तो जदों जो मंगना है मंगे, पर नाम सिमरन की दात जरूर मंगे। नाम जपण लिए तीन चीज़ां ताई वंज मेरे आलसा हर पास बिनंती। जिहड़ी आलस है इहनूं तां कहंदे आ कि परमात्मा ये आलस नूं मेरे जीवन चों खत्म करो, क्योंकि मैनूं अमृत वेले उठण नहीं दिंदी ये आलस। गुरु घर आउण लग्गिया मन आलसी हो जाता है, नितनेम करन लग्गिया मन आलसी हो जाता है। कई बार हथ च गुटका फड़िया, कोई फोन आ गया, किसी ने आवाज मार दी, 5-10 मिनट लंघे तो फिर उत्थे ही रख दिंदे आ भी चलो अज तो समा ही लंघ गया, कल सही। इन्ना आलसी हो जाता मन। पर इवें कदे रोटी लेट हो जाए रोटी नहीं छड्डदा, कोई जल पानी लेट हो जाए वह नहीं छड्डदा, कोई होर कीमती काम जान लग्या ट्रैफिक में लेट हो गया वह नहीं खुंजण दिंदा, देर सवेर लेट फेट पहुंचदा। हाँ जे किते नितनेम करन लग्या कोई 10-20 मिनट कोई अड़चन पै गई, उत्थे मन आलसी हो जाता है। 10 मिनट होर पै लवां, 10 मिनट होर पै लवां, इदां दी आलस करदे करदे दिन चढ़ जांदा।
ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੰਝ ਮੇਰੇ ਆਲਸਾ ਹਰ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਆਲਸ ਮੁਕਾ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। तो गरीब नवाज सतगुरु पातशाह ने भाई ये बख्शिश की। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जिहड़ा है सिक्खी सिद्धांत, सिख नूं एक सिद्धांत दे रहे आ कि तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं, जागत जोत जपै निस्बासर, एक बिना मन नैक ना आनै। ये सिद्धांत है, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जागत जोत जपै निस्बासर, एक बिना मन नैक ना आनै, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै व्रत गोर मड़ी, मठ भूल ना मानै, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, तीर्थ दान दया तब संजम। किसे गल नूं किते कोई पातशाह नीवा नहीं दिखा रहे। तीर्थां ते जाण वालियां नूं सिर्फ गुरु तेग बहादुर साहब ने इन्ना ही कहा सी, तीर्थ वर्त अर दान कर मन में धरै गुमान। गल हंकार दी है, गल गुमान दी है। जे गुमान आ जाए, हंकार आ जाए, कल एक शब्द आया सी ना, हों विच सचियार कूड़ियार, सच्चे ते झूठे बंदे नूं इक्को ही लाइन च मारे ने खड़ा दिता। हुण गल उत्थे सच्चे झूठे दी, जे हंकार सच्चे बंदे विच आ गया वो भी नहीं प्रवान, जे झूठे विच हंकार आ वो भी नहीं प्रवान, फिर इक्को ही कतार विच खड़िया, कोई फर्क नहीं है। तो मारे कह रहा, तीर्थ दान दया तब संजम, एक बिना न एक बछाना, पूर्ण जोत जगै घट में तब खालस ताहे निखाल जाना। यह सानू जिहड़ा सिद्धांत दिता, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। जदों कोई मंगता बन के आउंदा है, मंगता बन के मंगदा है, उदों सतगुरु महान बख्शिश करदे है। और मंगता उही बनदा, मंगता बनन दी निशानी है आत्म समर्पण, अपना आप छड्ड के मंगना, अपनी हौ नूं मार के मंगना। कबीर जा दिन हौ मुआ पाछे पिया आनंद, जिस दिन यह हंकार मरदा है फिर आनंद वरतदा है, फिर जीवन दे विच आनंद वरदा। तां ही महाराज ने कहा, जिस प्यारे स्यों नेहो तिस आगे मर चलीए। हुण इत्थे मर जाना नहीं किया महाराज, गुरु अंगद देव पातशाह जी इवें ही कह रहा कि मेरा गुरु नानक साहब नाल प्यार है, उन्हां दे जाण तो पहला मैं मर जावां, वो तो गुरता गद्दी ते बैठदे आ, गुरु अमरदास महाराज नूं गुरता गद्दी दिंदे आ। इत्थे ये गल नहीं सी, तिस आगे मर चलीए दा मतलब अपने गुरु प्यारे दे अगे अपना सिर, जिहड़ा हंकार दा सिर है, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ के हंकार ਨੂੰ मार के गुरु के हुक्म में चल। इसी अर्थ दे जे शरीर करके मारी गए फिर तो गल ही खत्म हो गई, फिर पता नहीं किहड़ा जामा मिलना है। और होर किसी जामे दे विच साडे कोले आ अवसर नहीं है जिहड़े च असीं बाणी पढ़ सकांगे, सत्संग विच बैठ सकांगे, कीर्तन सुन सकांगे, नाम जप सकांगे। ये सारा जिहड़ा कुछ आया मनुखा जामे दे हिस्से आया। इसलिए गुरु अगे आप छोड़ बेनती करो, अपना आप त्याग के बेनती करो, अपना आप गवा के बेनती करो। आप गवाई है तां सौ पाई है। जिन्हां ने अपना आप गवाया उन्होंने सौ नूं पा लिया। भाई नंद लाल साहब देखो कैसा समर्पण कर दिया। भाई नंद लाल जी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह कोल आउंदे आ, देखो वो औरंगजेब दे दरबार च किड्डे विद्वान होणगे जिहड़े बहादुर शाह नूं अरबी फारसी संस्कृत पढ़ाउंदे आ। उन्हां समयां विच अरबी फारसी दा जिहड़ा विद्वान है भाई नंद लाल के मुकाबले का कोई नहीं। एक बार औरंगजेब के दरबार विच अरब तो एक चिट्ठी आई जिहदे विच कुरान शरीफ की एक आयत लिखी है, ते 1400 विद्वान औरंगजेब की कचहरी च बैठा है। उस चिट्ठी के अर्थ पढ़ के जिन्ना सुनाउण वास्ते कहा गया कि इस आयत के शब्द के अर्थ पता करके भेजो भी असल अर्थ की बनदे आ। 1400 विद्वान तसल्ली नहीं सी करा सके औरंगजेब की। कहते कोई होर विद्वान बचिया जेड़ा इस पंगत इस आयत के अर्थ करे तो मेरी तसल्ली होवे। बहादुर शाह ने कहा, हाँ अबू मेरे उस्ताद जी ने वो तसल्ली करा सकते हैं। भाई नंद लाल जी जदों आए उन्होंने उस आयत के अर्थ किए, पैरों थलों जमीन निकल गई औरंगजेब दे। कहन लगे हैं एडे विद्वान मेरी सभा च। जदों नाम पूछया, जदों नाम पूछया भी ना किया, कहते नाम भाई नंद लाल। बस उदों एको ही ऐलान किया, जां इहनूं मुसलमान बना लो ते जां इहनूं मार दिओ। ये विद्वान जेड़े भी धर्म जाएगा, जिहदा प्रचार करेगा वो धर्म बड़ा सिखना ते जाएगा। नंद लाल बड़े मायूस होकर बैठ गए। बहादुर शाह ने पूछा, उस्ताद जी की होया? कहते तेरे पिता ने ऐलान नहीं सुनिया? की कीता? भी जां इहनूं मार दो जां मुसलमान बनाओ। जे मैं मुसलमान बनया मेरी आत्मक मौत है, जे मैं शरीरक तौर पर मर गया तो यह मौत मैनू दोनों पासे मौत है।
ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ना मेरा दीन इत्थे मैनूं बचदा दिंदा है, ना मेरी जान बचदी दिंदी है। तेरे पिता दे दरबार च किहो जिहा ऐलान, तुहाडी आयत, तुहाडी कुरान शरीफ, तुहाडा दरबार, ते मैं तां कल्ले अर्थ कीते, मेरा कसूर की है। बहादुर शाह कहंदा उस्ताद जी, एक जगह इस धरती ते इहो जी है जिथे तुहाडी जान भी बच जाएगी, तुहाडा दीन भी बच जाएगा। दसो। बहादुर शाह कहंदे ਉਹ है आनंदपुर साहब की धरती। ਤੁਸੀਂ गुरु गोबिंद सिंह महाराज ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਦੀਨ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੰਗ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਸ ਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਨੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਰਕਮੰਦ ਆਪ ਪਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਮਾਂ, ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯਕਤਾਰ ਮੂਏ ਯਾਰਮਾ, ਗਾਹੇ ਸੂਫੀ ਗਾਹੇ ਜ਼ਾਹਿਦ, ਗਾਹੇ ਕਲੰਦਰ ਮੇਸ਼ਵਦ, रंग है मुक्तल वदारत बोत यारमा, किधरे सूफी किते कलंदर, चोजी प्रीतम मेरा सयो, पल पल रूप वटावे, किधरे चोजी ए कहंदे ने सूफी बनदा, किते कलंदर बनदा, पल पल रूप वटा रिया। भाई नंद लाल साहब ने अपनियां गजलां विच, साडे कोले तां मसां ही कोई 5-10 सिफतां होणगीਆਂ ना गुरु गोबिंद सिंह दियां। जे कोई तुहानूं कहे भी दसो गुरु गोबिंद सिंह साहब दियां सिफतां, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ 5-7 ਸਿਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਥੱਕ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਆਪ ਥੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਰਾਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ੇ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਇਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਖਾਲਸੋ ਬੇਕੀਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਕਥਾ, ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਮੇ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ। ਮੰਗਦੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁੱਤਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਕੁੱਤੇ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਉਹ ਚਿਤਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਸਮਰਪਣਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਠੋਕਰ ਵੀ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਿਮਰਤਾ, ਆਪਣ ਸਮਰਪਣ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਬਚਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਥਾਲ ਪਰੋਸਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਪਏ ਆ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਟਣੀ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਬੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੀ ਖੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ? ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਖੜ ਗਏ, ਜੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨੰਦ ਲਾਲ?
सतगुरु मैं जो रोज प्रसादा लेके आना, मैं रोज वेखदा इत्थे कुत्ता बैठा हुंदा जिथे मैं बैठा, तुसी एक ग्राही तोड़ दिओ, उस कुत्ते वल सिट दिओ, जदों वो कुत्ता बुरकी तुहाडे पावन हत्थां दी दित्ती होई खा के जांदा है, मेरे मन चों आवाज आउंदी है, नंद लाल ये कुत्ते दा अज इस निखित जून चों खैड़ा छुटेगा, भला होएगा, इनू मानस जामा मिलेगा, इहदा जन्म मरण सतगुरां ने कट दिता, इहदा लोक परलोक सवार दिता। मैं तो सतगुरु अज कुत्ते की तरह उस जगह ते बैठा, किरपा कर दो एक बुरकिया नंद लाल कुत्ते वाल भी सिट दे। कैसी निमरता, जेड़े किताब लिखदा बंदगीनामा महाराज नूं भेंट की, सतगुरु आ तुसीं सेवा लई, महाराज ने किताब एक एक अखर पढ़िया ते आके कहन लगे नंद लाल इहदा नाम बंदगीनामा नहीं, नहीं बंदगीनामा नहीं, इहदा नाम जिंदगीनामा रख, जेड़ा इस किताब नूं पढ़ेगा जिंदगी जिउण दी जाच आ जाएगी। एडे कमाल दे शब्द, इन्ना प्यार कर दिया। ते नंद लाल की कह रहा, पातशाह नंद लाल भी तो तेरे दर दा कुत्ता, लाल सग गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, सग फारसी कुत्ते नूं कहंदे आ, लाल सग गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, ते नाल उन्हां कहा दागदार नाम गुरु गोबिंद सिंह, पर तेरे नाम तेरे शब्द नाल ये नंद लाल दागिया गया। दागिया मतलब किसी गर्म चीज नाल ना, ते ओ जदों लाउणा निशान जिन्हों लाउणा होवे दागिया जाना कहंदे आ ओनूं, ते मैं तां तुहाडे इस शब्द नाल दागिया गया। पर सतगुरु कदे कदे लगदा कमंतरी जे सिंगान गुरु गोबिंद सिंह, कमंतरी इन्ना नीवा, इन्ना अपने आप नूं आत्म समर्पण, सतगुरु कदे लगदा नंद लाल तेरे दर दा कुकर है, कुत्ता है, पर कदे कदे लगदा कमंतरी जे सिंगान गुरु गोबिंद सिंह तेरे दर दे कुत्तियां नालों भी नीवा है नंद लाल, रेजा चीने खान गुरु गोबिंद सिंह, इस करके नीवा तेरे पावन हत्थां दे नालों एक प्रसाद दी बुरकी कुत्ते नूं तां मिल जांदी है, नंद लाल नूं नहीं मिलदी। नंद लाल कुत्तियां तो भी नीवा। एडी समर्पणता की भावना, एडी निमरता की भावना सतगुरु पातशाह ने बड़ा प्यार ते सत्कार भाई नंद लाल साहब नूं दिता, पर मिलिया उन्हां नूं जिन्हां ने आप गवाई है तां सौ पाई है, जिन्हां ने एक तो बिना किसी नंद लाल साहब ने तां अखीर ते यह भी कह दिता। एक दिन तेज हवा चल रही सी, तेज हवा नूं कहण लगे है हवा गल सुन, तू रब दे हुक्म च वगदियां, तेज वगदियां, जेड़ी हल्की चीज़ां तू उड़ा के लै जानी है। देख नंद लाल ने एक दिन शरीर छड्डना है, इहनूं अग दे हवाले कीता जाना है, इहदे शरीर दी राख बननी है। उस दिन बड़े सोच समझ के चलनी, बड़ा संभल के चलनी, ये ना होवे तू तेज वगे मैनू इस दर तो चुक के किसी होर दे दर ते सट दवें, ऐसा ना हो जाए। ते कहण लगे नहीं तो लोकी देणगे ताने, इन्हें थां थां नेहों लगाए, मैनू तो तेज हवा नूं कहा भी लोग ताने मारनगे, नंद लाल काहदा सिख सी, ते जिउंदिआं जी किसी होर दे चरनां च, मरण तो बाद किसी होर दे दर ते रुलदा फिरदा। मैं मरण तो बाद भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों च रहना चाहना, क्योंकि तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याओ, जो बर चाहो सो तुम ते पाओ। ते भाई अगले बचन महाराज साहब ने कीते, सेवक सिख हमारे तारिए। लो आ अरदास अपने सारियां लई है। सेवक भाई भीखन शाह जी फकीर ने, पंडित शिवदत्त जी, पीर बुद्धू शाह जी, ये सारे सेवक ने। सतगुरु इन्हां लई भी अरदास कर रहा, ते नाल क्या सिख, ते सिख लई तां ये भी बचन मारे ने कि सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक कहो गुर सदा दयाल, सतगुर सिख का हालत पलत सवारै, सतगुर सिख कहो जी नाल समारिया। कोई सिख बन के तो वेखे, सतगुरु की प्रतिपालना कर दिया, ओदा लोक परलोक सवार दिया। कोई भावना वाला भाई नंद लाल वर्गा सिख बने, भाई लहणे वर्गा सिख बने, कोई ओहो जिहा भाई मंझ वर्गा सिख बने, ओदी जी नाल सतगुरु प्रतिपालना कर दिया। अपने अंतर आत्मा नूं टिका के रखदे, सिख नूं कदे भुलदे नहीं। ते महाराज कह रहे परमात्मा मेरे सेवकां नूं, मेरे सिखां नूं दुनिया दे सारे दुखों तो बचाई, इन्हां नूं तन करके सुख शांति दे, मन करके सुख शांति दे, आत्मा करके सुख शांति दे। मेरे सिख दे घर विच हर वेले रौनकां लगियां रहन, खुशियां खेड़े वरतण, इन्हां नूं कोई दुख ना लगे। बड़े लोग आ जिहड़े दुख तो डरदे आ। किसी ने कहा भी जो दुख तो बचना होवे फिर की करिए, महाराज कहंदे संत बन जाओ। जे दुख तो डर लगदा ना, फिर तुसीं संत बन जाओ। क्यों संत बणीए? कहंदे संत नूं दुख पाए ते दुखी,
सुख पाए साधन के सुखी। जदों तुसी संत बन गए, संत कोई पहरावा नहीं, संत तक है जिन्ना सास गिरास ना विसरै। हर नामा मन मंत धन से सही नानका, पूर्ण सोई संत। जे तुसी ओह जे संत बन गए जिन्हों माड़ा जिहा दुख लगदा, खबरां सचखंड तक पहुंच जांदियां, खबरां रब दे घर तक पहुंच जांदियां, ते इहो जिहा संत बन जा जे तैनूं दुख लगे तां रब नूं महसूस होवे मेरा भगत दुखी है। तेरे दुख बारे रब नूं पता लगे, इहो जिहा संत बनी। तेरे तन मन नूं कोई आंच आवे ते पहला रब दा दरवाजा खड़क जाए, तू ओहो जिहा संत बन। ते तां महाराज साहब कह रहे संतन दुख पाए ते दुखी। ते जेड़े संत गुरमुख प्यारे बन जांदे आ, उन्हां दे दुख रब आप हरदा है, अपने आप ते लैंदा है, उन्हां नूं डोलण नहीं दिंदा, विच वरत के उन्हां दे दुखां नूं कढदा है। चुन चुन सतर हमारे मारिए। सतर दा मतलब शत्रु, संस्कृत विच शत्रु दुश्मन नूं कहा जाता है, अरबी दे विच शत्रु एक लंबी कतार नूं कहा जाता है। सतगुरु मेरे दुश्मन एक लंबी कतार है। दुश्मन बहुत ने, पर कई बार दुश्मन सेवक भी बन जाते हैं। सैयद खान दुश्मन सी महाराज दा, पर सेवक बनया। इत्थे जिहड़े आ सेवक भी बने, इसलिए चुन चुन सारे नहीं मारने, जिहदा दोष है उसे नूं मारना, किते ऐसा ना होवे इक्के रस्से सारे बन्ने जाण, निर्दोष भी मर जाण। चुन चुन सतर हमारे मारिए। चुन चुन के मेरे शत्रुआं नूं, मेरे जीवन में जिहड़े अंदर बैठे आ उन्हां नूं भी चुन चुन के खत्म करो, ते जिहड़े बाहर मैनूं दुखी कर रहे आ उन्हां नूं भी सतगुरु पातशाह तुसीं सजा दिओ। इसलिए सतगुरां ने वचन कीता, जयकार कियो धर्मियां का, पापी को दंड दिओ। धर्मियां दा जय जयकार हो रहा है ते पापियां नूं सजावां दित्तियां जांदियां। कई कह रहे हैं भी गुरबाणी विच तां सरबत दा भला मंगिया गया, सतगुर सबना दा भला मनाएगा। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मानना हंडाए। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह रहा, चुन चुन सतर हमारे मारिए। चुन चुन के शत्रुआं वैरियां नूं मारो। भाई एक सिद्धांत लैके जां एक अद्धा शब्द याद करके चलांगे ते मन च शंके आउणगे। इसलिए मैं बेनती करदा हुंदा कि इतिहास वध तो वध पढ़ो, पहला इतिहास नाल जुड़ो, पता लगेगा इतिहास विच बड़ियां घटनावां ने। और गुरबाणी विच कई इदां दे वचन ने जिहड़े एक इतिहास दे विचों आए हुए वचन ने। इतिहास उन्हां दे नाल कोई ना कोई साखी जुड़दी आ वचनां नाल। जदों कोई इंसान ना रवे, शैतान बन जाए, हवान बन जाए, इंसानियत मर जाए, उन्हां लई तां गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने भी इहो जे लोकां दे मारे जाण ते रब दा शुकराना कीता। गुरु अर्जन साहब नूं मारन आ रहा सुलही खान, सिखां ने कहा जी वो मारन आ रहा, कोई इंतजाम करो। महाराज कहंदे कोई नहीं, रब दा ओहदे अगे ही अरदास करो, रब आपे वेखेगा। खबरां आईयां कि वो आवे दे पट्ठे च डिग्गिया, समेत घोड़े नापाक होके मर गया। उत्थे हुण शब्द महाराज देखो, शुक्र मरिया तक बंदा ही आ ना, पर बिरती किहो जी लैके आ रहा, इंसानियत खत्म हो चुकी है, हवान शैतान बन के आ रहा। उत्थे रब दा शुकराना कर रहा, जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह महाराज का हमरे दुष्ट सवै तुम कहावो, चुन चुन सतर हमारे मारिए। उत्थे सतगुरु कह रहा, सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलही हुए मुआ ना पाक। काट कुठार खसम सिर काटिया। कुठार का मतलब होंदा कहाड़ा। रब ने मौत का कुहाड़ा लिया ते सुलही खान का वो सिर वड्डिया, खिन में होए गया है खाक। एक खिन विच जिहड़ा गुरु नूं खत्म करना आया सी, आप ही खाक बन गया। एक बचन आया, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल। सब जाते हरगोबिंद साहब ते 4-5 वारी मौत आई। एक बारी खिडावा एक ब्राह्मण आया, दही लैके आया, दही च जहर मिला के लैके आया। सतगुरां नूं पता लग्या कुत्ते अगे वो दही रखी ते कुत्ते ने खाधी, मर गया। उथे नाल ही उस ब्राह्मण दे सूल उठिया, नाल वो मरदा मरदा एक जिहड़ा पाज भी उगेड़ गया कि मैनूं पिरथी चंद ने पैसे दे के भेजा कि साहिबजादे नूं जहर वाला दही दे ते मारो। उत्थे सतगुरु फिर कह रहे आ कि परमात्मा दी देखो अजमत कैसी वापरदी है, लेप ना लागो तिल का मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल। उन्होंने दुष्ट किया। चौपी साहब की कह रहा, हमरे दुष्ट सवै तुम कहावो, चुन चुन सतर हमारे मारिया। भाई रब तां जिहड़ा है इयाना पापी वो आप बचाया, पापियां नूं रब आप मार मुकाउंदा है। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। ते कदे हरनाकश अपने पुत प्रहलाद नूं मारदा है ते रब उथे ना थम पाड़ प्रगटिया, नर सिंह रूप अनाद जुगाद। रब नर सिंह दा रूप बन के आउंदा, कड खड़क सद पुछया ते उथे रब ने हथ च तेग फड़ी है, तलवार फड़ी है। एडे जालम बादशाह हरनाकश नूं जिहड़ा कहंदा रब कुछ नहीं, मैं ही मैं हां, ते प्रहलाद कह रहा मेरा बाप झूठ बोलदा, सारियां थावां ते रब कह, राम है, परमात्मा कह।
बस परमात्मा तो वड्डी कोई ताकत नहीं। कदे पानी विच सिटिया, कदे दरख्तां तो सिटिया, कदे अग विच बिठाया, पर रब ने हर थां अपने भगत प्यारे की लाज रखी। ते हरनाकश नूं फिर जिवें उन्हें जेड़े वर मंगे सी वो वर भी उहदे पूरे कीते ते उहनूं मार मुकाया। इसलिए इन्नी बेनती करनी चाहना, गुरु नानक साहब ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज का एक सिद्धांत है, इको ही जोत है ते इको ही फलसफा है, इको ही विचारधारा है। हाँ, जिमें जिमें असीं इस पावन बाणी की गहराई में जावांगे, उवें उवें सतगुरु कृपा करनगे, साडे मन विच ये भावना बनेगी। ते ये पंज बाणियां जिहड़ियां सानू नितनेम विच सिख जगत का नितनेम है, जिहदे विच चौपाई साहब चौथे नंबर की बाणी है, जिहनूं सवेरे भी असीं पढ़दे हां ते शाम नूं सोदर की बाणी विच भी पढ़दे हां। और इस बाणी दे राहीं वाहिगुरू अगे अरदास करदे हां, हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए, चित्त की इच्छा परमात्मा अगे। ये अरदास रूप, ये बेनती रूप बाणी है भाई। इस बाणी नाल इहनूं पढ़ो, समझो, मन च वसाओ ते अपने जीवन का आधार बनाओ, जिस करके ये जीवन लोक सुखीए, पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मिले दे भागी बन सके। तमाम भुलां चुकां दी खिमा दिओ सजण असीसड़ियां जो होवे। साहिब स्यों मेल सारी संगत आनंद साहब की बाणी च रसना पवित्र करो। फिर अरदास बेनती विच जुड़ांगे। आनंद साहिब राम कली महला तीजा। आनंद इक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया, कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। हर नाल रहो तुम मन